A very good morning to all of you. Today we are going to start again the Python basics. Or in this class, or as you all know, in the last class, we have done the basic programming skills. If else we have learned, right? And we'll continue from there only. Whatever in continuation will be, that will do. First of all, today our first topic is for loop. As we have already done if else, I hope that you have done a good practice. Or if you are given a question of choices, that there is a specific condition, and if condition is satisfied, then this should be done. If not, then this should be done. So that type of programs you should be able to do. Suppose question दें कि you have to get a number from the user, and in reply you have to show your number is even number or your number is odd number. That you should try. Number two, you can ask the age of the user, and then you can reply that you can vote or you cannot vote, right? All these type of, or grading, you can ask the marks from the user, then you can reply that your grade is A, your grade is B. All that can be done, right? But kab hoga? When you will practice, only then it is possible. Now next is for loop. In for loop, अगर हम बात करें फॉर लूप एंड इफ एल्स, इन इफ एल्स इट्स इफ एल्स इज अ सिलेक्शन loop or selection criteria where you are given a specific condition, and on the basis of that specific 2 or 3 situations are given. User उसमें से choose करता है as per the input, and then output is given to the user. But in for loop we need to repeat certain things for a particular number of times. Means same चीज को बार बार again and again you have to do, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर लूप. अब एक अगर हम एक केस लें दैट यू आर गिवन अ नंबर 1, ठीक है, इनपुट यूजर ने किया 1, एंड यू आर आस्क्ड टू ऐड 1 every time till the number reaches 100. Getting? मैं क्या कह रही हूँ? यूजर, फ्रॉम यूजर you got a number, yeah, the user entered 1, and you are asked to add 1 again and again until you reaches to 100. तो आपको कितनी बार वो रिपीट करना पड़ेगा? एटलीस्ट 100 टाइम्स. 1 में ऐड किया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लाइक दैट टिल 100 you have to do. Means it will take a lot of time, and the person who is adding bore हो जाएगा, है ना? Bore plus time taking. So to sort out this type of issue, means where we need to repeat certain things, एक ही चीज को बार बार करना है until we reaches a condition. जब तक हम एक condition पे नहीं पहुंच जाते, एक ही चीज होती रहेगी. In such cases we use for loop. हमें पता होना चाहिए when we need if else or when we need for loop. Okay, now for doing these repeated things, the program has to execute the print statement multiple times. अगर 1 के बाद 2 दिखाना है तो फिर प्रिंट करना पड़ेगा 2, 3 दिखाना है फिर प्रिंट, 4 प्रिंट, 5 प्रिंट, like that again and again print statement will work. This kind of repetition is called looping, or you can call it iteration. ठीक है, ये टर्म्स एग्जाम में पूछ लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इटरेशन? ठीक है, लूप का मतलब तो हम सब समझ जाते हैं, मींस इन कंटिन्यूटी, अगेन एंड अगेन इफ द सेम थिंग इज गोइंग ऑन, दैट मींस लूपिंग. इटरेशन भी यही है. व्हेन द सेम थिंग्स continuously we have to execute multiple times, that is called iteration, and it is done using for statement. Means for loop का use करके होता है. Then for statement is used for iterate over a range of values or a sequence. Means if you have a range of values, आपको एक particular values दे दी, भाई ये 10 values है, इन्हीं में 1 ऐड करके हमें दिखाओ, that can be done. The loop is executed for each item of the range. Suppose you have given 10 numbers, 1 से लेके 10 तक आपने नंबर दिए हैं, तो पहले वो 1 को उठाएगा, फिर सेकंड नंबर को उठाएगा, फिर थर्ड को उठाएगा. मींस इंडिविजुअली single times, or each item will be entertained, right? When all the items in the range are executed,
the statement within the loop are not executed and Python interpreter starts executing the statements immediately following the for loop. दोबारा ध्यान से देखेंगे, when all the items in the range are exhausted मीन्स अभी मैंने एग्जांपल दिया दैट आई यूजर हैव गिवन 10 नंबर्स, आपको 10 नंबर, जब 10 के 10 नंबर हो गए देन द स्टेटमेंट विद इन द लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड, जब सारे डिजिट एग्जीक्यूट हो गए देन नथिंग लेफ्ट, देन नाउ Python interpreter starts executing the statements immediately after the loop. तो loop के बाद जो भी statements होंगी means आपका loop खत्म, the loop is finished if all the values given in your range that is done, that is exhausted, that is completed or that is displayed to you. After that जो भी loop के बाद आपने command दिया है that will be executed. ठीक है, मीन्स प्रोग्राम में यही होता है ना, पहले जो स्टेटमेंट है दैट विल एग्जीक्यूट, आफ्टर दैट नेक्स्ट विल एग्जीक्यूट, इन द लूप इज कंप्लीटेड देन लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट है दैट विल एग्जीक्यूट, दैट विल रन. व्हाइल यूजिंग फॉर लूप we should know in advance the number of times the loop will execute. means जब भी for loop use बना रहे हैं और we are planning और we are programming, we must know पहले से ही, लूप चलने से पहले आपको पता होना चाहिए दैट हाउ मेनी टाइम्स योर लूप विल रन. ये जो आपका लूप सिस्टम है कितनी बार आपका लूप घूमेगा, ठीक है, कितनी बार रिपीट होगा, राइट. अब सिंटेक्स देखते हैं, हाउ टू राइट द प्रोग्राम फॉर लूप. देखो ध्यान से देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अ कीवर्ड इज फॉर हेयर. देखो स्पेशली दिखाने के लिए मैंने माउस का पॉइंटर आज आपके लिए चेंज किया है. यू कैन सी दिस फॉर इज सेम एवरीवेयर. Then control variable, any variable you can take here, any variable like a ले लो, I ले लो, k ले लो, any variable, ठीक है. Here this is the variable in which आपके जो भी यूजर ने नंबर दिए हैं उनमें से एक एक उठ के यहाँ पर आएगा इस वेरिएबल में, right. Then in is a keyword that will be fixed. And here sequence items in range means जो भी यूजर दे रहा है that will be here, यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ से एक एक नंबर उठ के हमारे वेरिएबल में जाएगा और हमारा वेरिएबल रन होगा नीचे. ओके, दोबारा देखेंगे. दिस इज एनी वेरिएबल जो आप एज्यूम कर रहे हैं and this is what this is the values on which your program will run. यूजर की दी हुई वैल्यूज हैं ये, राइट. एंड हेयर आपकी मर्जी के स्टेटमेंट आप प्रिंट करवा रहे हैं, आप प्लस कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट दैट इज हियर, ठीक है. नाउ लेट्स सी, इसी को एक बार ट्राई करते हैं. आई एम ओपनिंग पाइथन, राइट. पाइथन आई हैव ओपन्ड. yes, let me make it little smaller so that it will be more visible to you. yeah, done. Now as we want to write a program, okay, so for that we will go in script mode. okay, when more than one or two lines are there for your commands, so always go with script mode. file then new file. ये खुल गई हमारा script mode, ठीक है. इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लें. yes, now we will write the program. सबसे पहले मैं प्रोग्राम कमेंट डालती हूँ so that you will know कि हम कर क्या रहे हैं. write a program to show what, क्या शो करें, 1 to 5 लिखते हैं, ठीक है. 1 to 5 नंबर. फाइन. means this is not a part of program, this is just an information shown to the user. जब हैश लग जाए it means it's a comment, okay, and it is not affecting your program at all. फाइन. अब देखो, अब मैं सपोज एक लिस्ट बनानी, हमने लास्ट टाइम सीखी थी. मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, लिस्ट 1, उसमें मैंने 5 नंबर ले लिए, 1 2 3 4 5, राइट. ये एक लिस्ट यूजर ने दिया है. यू कैन एज्यूम कि यूजर ने हमें लिस्ट दे दी. फाइन, कोई नई चीज नहीं करी. नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर लूप. सबसे पहले यू विल राइट फॉर then any variable in which you want to run your for loop. suppose मैं I चाह रही हूँ कि मेरा
जो फॉर लूप का जो वेरिएबल है दैट इज द कंट्रोल वेरिएबल, दैट इज आई। आप ए ले लो, के ले लो, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। मीन्स मेरा फॉर लूप जो है बेसिकली इस आई में रन होगा, ओके। एंड इन मीन्स कौन से डेटा में चले, इन मेरा डेटा लिस्ट वन में, लिस्ट वन हमने यहां दी थी ना, दिस इज द लिस्ट वन, फाइन। एंड आफ्टर दैट कॉलन इज कंपल्शन। ध्यान से देखेंगे, whatever is in orange that will be same always, for or in, you can see in orange color they are same, these two will change as per your requirement। your variable आप दे रहे हैं i वाला variable, फिर है list one, this is this is the variable in which your data is there। जरूरी नहीं आप list one दे, आप डायरेक्ट ये 1 2 3 4 5 यहां लिख सकते हैं, ठीक है। डन, नाउ प्रेस एंटर। अब क्या देख रहे हैं, इंडेंटेशन। लास्ट टाइम एक टर्म मैंने स्पेशली बताई थी दैट फॉर 1 मार्क और 2 मार्क इन द एग्जाम इट इज आस्क्ड। इंडेंटेशन क्या होती है, यू कैन सी दैट व्हेन आई प्रेस एंटर तो मेरा एंटर यहां आना चाहिए था, एफ के नीचे कर्सर आना चाहिए था, बट नाउ यू कैन सी 4 to 5 स्पेसेस छोड़ के यहां पर कर्सर आ रहा है, राइट। हियर यू कैन सी द कर्सर इज हियर। Why? This is called indentation, means this time whatever we are writing that is a part of for loop, वो for के अंदर है। अगर बिल्कुल इसी के लेवल में लिखेंगे तो that is not inside for, ठीक है, got it। अब मैं क्या चाहती हूं, एवरी टाइम क्या प्रिंट करें, आई। खत्म फॉर लूप, काम खत्म, सिंपल है ना। अब क्या होगा, पहले समझेंगे इस लूप में कैसे चलेगा ये लूप। for I is my control variable of my for loop, और कौन से डाटा यूज कर रहे हैं, इन लिस्ट वन। लिस्ट वन में जो भी डाटा है दैट वी आर यूजिंग, मीन डाटा क्या है 1 2 3 4 5। तो व्हाट दिस फॉर लूप विल डू, इस लिस्ट से पहला आइटम उठ के आई के पास जाएगा। लिस्ट वन से पहला आइटम कौन सा है, 1, दिस वन इज फर्स्ट आइटम, ये उठ के आई के पास जाएगा, पहला का प्रोसेस हुआ। फिर नेक्स्ट लाइन में आता है, वो क्या कह रहा है, प्रिंट आई। आई के पास क्या है, 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक बार लूप चल गया, वापस ऊपर जाएगा, चेक करेगा खत्म हो गया काम। चेक कर रहे हैं तो लिस्ट 1 अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। नाउ लिस्ट 1 से सेकेंड आइटम उठ के आई पे जाएगा, दैट इज 2। नेक्स्ट लाइन में आए प्रिंट आई, अब आई कितना है, 2। नाउ 2 विल प्रिंट, राइट, वो फिर वापस जाएगा। अब लिस्ट का थर्ड आइटम उठ के आई के पास जाएगा, देन प्रिंट आई नाउ आई इज 3। इन सेम वे 1 प्रिंट, 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। 5 प्रिंट होने के बाद वापस ऊपर जाएगा। नाउ इन लिस्ट 1 इट विल चेक आफ्टर 5 कुछ नहीं है, तो सीधा ये क्या होगा, इस लूप से बाहर आके आपका लूप खत्म, ओके। चलिए रन करते हैं। ये तो मैंने बताया, लेकिन वाकई में ऐसा हो रहा है। फॉर दिस पहले सेव करेंगे अपने प्रोग्राम को, let me save it on the desktop and name it for1, okay, and save। now run कैसे करेंगे, और you can press F5 from your keyboard और run मेन्यू में run मॉड्यूल, रन किया, what you can see 1 2 3 4 5, पहले लूप खत्म नहीं हुआ, 5 के बाद लूप खत्म हुआ, इसलिए आपकी कमांड आ गई, गॉट इट। अब जरूरी नहीं है ये लिस्ट 1 में दूं, देखो मैं यहां पर भी डायरेक्ट अपना डाटा दे सकती हूँ। सी मैंने यहां दे दिया 2 3 6 7 9, ओके। अब रन करें अपना प्रोग्राम, पहले सेव करते हैं एंड देन रन। सी whatever you will give in your data that will be displayed, this is the for loop, okay। I think basics तो समझ में आए होंगे। हम अभी 2-3 प्रोग्राम्स और करेंगे, let's do it now। the range function बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत easy, simple and most useful function it is। we will use this function in for loop also, right। now range का मतलब I think we all know range is what means some terms are there। एक टर्म की बात नहीं कर रही, range means start से end तक अब complete multiple numbers are there, ऐसी होती है range। it is what, it is a built-in function in Python में built-in function है आपके पास। ये the syntax क्या है, इसका syntax क्या होता है, range
पहले आप रेंज कीवर्ड लिखेंगे, इन द राउंड ब्रेसेस 3 नंबर आप डालते हैं, 3 नंबर ध्यान से देखेंगे। पहला नंबर स्टार्ट, कहां से आपको रेंज स्टार्ट करनी है। सेकंड नंबर स्टॉप, कहां खत्म करनी है। थर्ड नंबर स्टेप, कितना जंप करना है। बड़े ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट नंबर स्टार्ट, सेकंड नंबर स्टॉप, थर्ड नंबर स्टेप। ठीक है। थर्ड नंबर इज कंप्लीटली ऑप्शनल, स्टेप आप दें ना दें, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। इफ यू आर नॉट गिविंग एनी स्टेप वैल्यू, इट मीन्स कि आप एक एक की जंप चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर समझ लेता है कि स्टेप वैल्यू कुछ नहीं डाली तो इट इज 1। गॉट इट। अगर स्टार्ट नहीं डाली, दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। सपोज स्टार्ट नहीं डाली, इट मीन्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स दैट स्टार्ट 0 से करना है। गॉट इट। मीन्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0। स्टेप नहीं डाला तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ऑटोमेटिकली दैट एक एक की जंप करनी है, मीन्स स्टेप वैल्यू इज बाय डिफॉल्ट 1। राइट। अब रह गई स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू मीन्स अगर हम एक वैल्यू डाल रहे हैं, ओनली 1 इन द राउंड ब्रेसेस, इट मीन्स कि हमने स्टॉप वैल्यू डाली है। ठीक है, हमने स्टॉप वैल्यू डाली है। नाउ ये रुकता कहां पर है रेंज, स्टॉप -1। जो भी आप स्टॉप वैल्यू डालेंगे, सपोज मैंने स्टॉप वैल्यू डाली 9, तो 9 - 1 8, तो ये 8 तक चलेगा। गॉट इट। कुछ मेन चीजें मैंने बताई हैं इसके बारे में, यहां पर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी है, अगर सिंपली मुझे पाइथन में रन करके देखना है रेंज चलता कैसे। अब यहां देखेंगे पहला फंक्शन, लिस्ट मीन्स लिस्ट के अंदर मैं रन कर रही हूँ, फंक्शन मेरा रेंज ही है। ओके, रेंज इन द ब्रेसेस ओनली 1 वैल्यू। मैंने बोला अगर एक ही वैल्यू दी है, इट मीन्स स्टार्ट कहां से हो रहा है। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर विल, योर पाइथन विल अंडरस्टैंड दैट योर स्टार्टिंग वैल्यू इज 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई जंप वैल्यू नहीं दी है, थर्ड वैल्यू नहीं दी है, इट मीन्स योर पाइथन विल अंडरस्टैंड दैट जंप वैल्यू इज 1, बाय डिफॉल्ट दैट इज 1। अब स्टॉप वैल्यू 10 है, मैंने बोला 10 - 1 9, मीन्स स्टार्टिंग 0 से और 9 तक इट विल डिस्प्ले द वैल्यू। सिर्फ रेंज 10 लिखने से these all values will be displayed 0 to 9, right? सेम वे अब देखो दो वैल्यूज दिए हैं, इट मीन स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप। जंप अगेन बाय डिफॉल्ट इट विल बी अंडरस्टूड दैट जंप इज, जो स्टेप वैल्यू है, जो जंप वैल्यू है, दैट इज बाय डिफॉल्ट 1। अब 2 से स्टार्ट हुआ है तो यस 2 से स्टार्ट होगा, खत्म कहां होगा, 10 - 1 9 पे खत्म होगा। ओके, एंड इट विल जंप 1 1 1 बाय डिफॉल्ट। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, हेयर 3 वैल्यूज, तो 3 है तो बिल्कुल क्लियर है। पहली स्टार्ट, सेकेंड स्टॉप एंड थर्ड वन इज व्हाट, स्टेप। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहां होगा, 30 - 1 मीन्स 29 पे खत्म होगा। जंप कितना है, 5, मीन्स 5 5 की जंप करेगा। तो यू कैन सी 0 5 10 15 20 25। अब आप कहेंगे मैम ये तो 29 पे खत्म होना था, है ना, बट 25 में +5 करते हैं तो दैट बिकम्स 30, लेकिन हमारी लास्ट वैल्यू क्या है, 29, दैट्स व्हाई इट्स टिल हियर। Now it can also work in negatives. You can see here start 0, खत्म कहाँ है, -9 में -1 करेंगे, बैक चलना है तो -8 तक और -1 का जंप है। ओके, तो दिस इज हाउ इट विल रन। लेट्स सी, एक बार पाइथन में वी विल ट्राई। यस, हियर आई राइट लिस्ट, चलिए रेंज क्या लिखें, आई हैव रिटन 20। ओके, what is there, what is displayed here, 20 means only single value I have given, right? Starting 0, 20 - 1 19 तक रन होगा, 0 to 19 means जब एक वैल्यू दियो। now let's see when दो वैल्यूज दियो, what will happen, suppose two values are there, 3, 8। yes, tell me the answer, what will be the answer, unmute and answer।
Hurry up. What will be the answer? हाँ जी, जी means start value is 3 and end value is 8 minus 1 means 7, right? So 3 से 7 तक all the things it will be showing to you, right? Very good, Yash. हाँ जी. Now if 3 values are there, let's see. Suppose I want to show all the even numbers. क्या करेंगे? Start 1 से 100 तक even numbers चाहिए. क्या करें? I'll start from 0, right? And 100 तक चाहिए means I want to include 100. So it means I should take 100 plus 1 na? 101. Why? Because here minus 1 value in stop is taken. 101 minus 1 means it becomes 100. Right? Comma. Even numbers में कितनी कितनी jump होती है? 2 की jump. 0 plus 2 is 2. 2 plus 2 is 4. Right? Simple. Press enter. Sorry, I forgot one bracket. Yes. See? All the even numbers सिर्फ एक कमांड में. Got it? I think it's clear. Now let's use this range function in for loop, right? चलिए. From user, suppose I want to get a number num1. मैं user से डलवा रही हूँ int input और मैं user को कह रही हूँ enter first number. Okay, bracket close, right? Now num2 में डलवा रहे हैं हम सेकेंड नंबर. num2 is equal to int से क्या होगा? It will change whatever the user will enter, that number will change into numerics. ठीक है? Enter second number. In the last class we have done these all. हाँ जी. Till now what we did? हमने दो नंबर यूजर से डलवा लिए, नंबर num1 एंड num2. अब मैं चाहती हूँ यूजर जो भी दो नंबर डाले उनके बीच के इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स जो भी आपको देखना चाहते हैं, या यू कैन से उन नंबर्स में एक दो दो की जंप करके आपको शो करे. राइट? व्हाट वी विल डू फ्रॉम हेयर, आई यूज रेंज फंक्शन. मैं रेंज फंक्शन यूज कर रही हूँ. फॉर आई मीन्स आई इज माई कंट्रोल वेरिएबल ऑफ फॉर लूप इन रेंज. अब रेंज में मैं स्टार्ट कहां से कर रही हूँ? num1 से. num1 कौन सा नंबर है? जो यूजर ने डाला है. राइट? कहां तक चले? num2 प्लस 1 कर दिया मैंने. जहां जो यूजर ने सेकेंड नंबर डाला है वहां तक तो चलाना चाहते हैं ना हम, है ना? तो रेंज फंक्शन की जो स्टॉप वैल्यू होती है उसमें अगर +1 कर दें, इट मीन्स ऑटोमेटिकली ये -1 करेगा. तो हमारा यूजर जहां तक चाह रहा है num2 वहीं पर रह जाएंगे ना हम. कॉमा मैं चाहती हूँ 2 की जंप करे. ओके, चलिए डन. नाउ प्रिंट आए कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी. अब इसको एक बार सेव करते हैं एंड रन. सी यूजर से हम उससे कह रहे हैं फर्स्ट नंबर डालो भाई. मैंने डाला 20. नाउ इट इज सेइंग सेकंड नंबर डालो. आई एम पुटिंग 40. ओके, प्रेस एंटर. यू कैन सी 2 की जंप करके इट इज शोइंग 20 टिल 40. अगर मैं वहां num2 प्लस 1 नहीं करती तो ये 38 तक ही दिखाता आपको. टिल हेयर इट विल बी शोइंग. गॉट इट? नाउ सपोज आई वांट, यहां चलते हैं, देखो ध्यान से. आई हैव शेयर्ड इट विद यू. यू कैन सी नंबर्स हैं यहाँ पर. अगर मुझे ये नंबर्स यूज नहीं करनी, मुझे ये लाइन, तो डायरेक्टली रेंज फंक्शन आई कैन यूज हियर. ठीक है, रेंज स्टार्टिंग विद 0, स्टॉप वैल्यू 10 प्लस 1 हो जाएगी 11, है ना?
जंप देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 1 1 1 1 जंप इज देयर, बाय डिफॉल्ट इट इज 1। ओके, नाउ अब ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, फॉर के अंदर हमने इफ फंक्शन लगा दिया। इफ लास्ट इन द लास्ट क्लास वी हैव लर्न्ड, हम क्या कर रहे हैं इसमें कि जो यूजर का जो भी नंबर आ रहा है, आप देखो यहाँ कंट्रोल वेरिएबल नम है, नम जो भी नंबर उठ के आ रहा है, पहला नंबर 1 आ रहा है उठ के, ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन, ऑलरेडी वी ऑल हैव डन इन this modulus function what it does, it returns remainder to you, means हम डिवाइड करते हैं, जो भी नीचे शेष बचता है रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो ये चेक कर रहा है, यू कैन सी डबल इक्वल्स टू हेयर, है ना, डबल इक्वल टू नंबर है, मींस ये इक्वल चेक कर रहा है कि जो रिमाइंडर आया वो 0 है। अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इट मींस दैट नंबर इज इवन नंबर है, तो अभी तो फुल डिवाइड हो रहा है ना। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो इट मींस दैट इज ऑड नंबर, है ना, इजी है ना। तो दिस फंक्शन कैन बी डन। चलो ये वाला ट्राई करें, लेट्स सी। इसी में चेंज करते हैं, यूजर फर्स्ट नंबर डाल रहा है, सेकंड नंबर डाल रहा है, एंड मैं इसको जंप नहीं दे रही। ओके, अब मैं यहां पर इसको हटा दिया और हम इफ लगाते हैं, ठीक है। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कंडीशन दे गया हम। हमारी कंडीशन क्या है कि हमारा फंक्शन कंट्रोल वेरिएबल कौन सा है, आई, मैंने यहाँ पर आई लिया है ना, तो पहला नंबर उठ के आई में आएगा, आई को मैंने डिवाइड किया 2 से, ठीक है जी। डिवाइड सिंगल स्लैश होता है, मैंने मॉडुलस किया है, मींस डिवाइड होके रिमाइंडर आएगा अब हमारे पास। और डबल इक्वल टू लगाया, आई एम चेकिंग कि आइदर इट इज इक्वल टू 0, मींस पूरा पूरा डिवाइड हो गया या नहीं। इफ में भी कॉलम लगता है, ओके। अगर पूरा डिवाइड है तो इफ के बाद आप क्या शो करना चाहते हैं, दैट शुड बी डिस्प्ले। तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि जो भी आई में वेरिएबल है, दैट और इज एन इवन नंबर। देखो क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखेंगे, द थिंग विच इज नॉट इन कोट्स मीन्स दैट इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो आई इज अ वेरिएबल, आई के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद कोट्स में आपने जो भी लिखा है दैट विल बी डिस्प्लेड एज इट इज, सेम टू सेम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब अगर ये इवन नंबर नहीं है देन क्या होगा, तो क्या होगा, एल्स, है ना। अब देखो, अब ध्यान देना है, मैंने यहां पर एंटर लगाया तो इंडेंटेशन की वजह से कर्सर कम्स हियर, बट एल्स लिखना है हमने, तो आपको बैक स्पेस दबा के वापस यहीं आना है। इफ के लेवल में ही एल्स लिखा जाता है। एल्स देखो, एल्स का मतलब अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। इफ इट इज नॉट हैपनिंग देन व्हाट विल बी शोन। तो हम क्या शो कर रहे हैं, देखो मैंने एंटर दबाया, अपने आप इंडेंटेशन आ गई, यही लिखेंगे। इस इंडेंटेशन का मतलब क्या है, अब जो भी आप लिख रहे हैं दैट इज in this else, that is included within this else. Now I'll write print, अब जो भी आई के अंदर है मीन्स कॉमा, अब मैं लिख दूंगी is an odd number, सी, डन। नाउ लेट्स सी हमारा प्रोग्राम सही भी बना है कि नहीं, सेव किया, रन, रन। देखो फर्स्ट नंबर इट इज आस्किंग, चलो मैंने फर्स्ट नंबर डाला 3, राइट, सेकंड नंबर मैं डालती हूँ 45, ओके। चलो एंटर, ध्यान से देखो क्या हमारे रिजल्ट कोई गलत है। 3 इज एन ऑड नंबर, अरे वाह, 4 इज इवन, 5 इज ऑड, 6 इज इवन, 7 इज ऑड, इजंट इट गुड। अगर सिर्फ इवन देखने हैं तो अपने प्रोग्राम में से हटा दो एल्स वाला, ओके, या सिंपल लिख दो दिस इज नॉट एन इवन नंबर, यस दिस इज एन इवन नंबर, नो दिस इज नॉट एन इवन नंबर, सब हमारी मर्जी, वट एवर वी वॉन्ट टू शो दैट कैन बी डन, राइट। तो हम फॉर के अंदर, इफ के अंदर फॉर वी कैन डू, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, ओके।
अब नेक्स्ट प्रोग्राम एक बार देखो ध्यान से, रेंज फंक्शन जब हमने यूज किया फॉर नम इन रेंज 5, रेंज अभी बताया मैंने, अगर सिंगल वैल्यू है इट मींस डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू इज 0 और स्टेप वैल्यू इज 1, है ना, इट मींस ये क्या है 1 2 3 4 4 तक है, राइट। अब इट इज आस्किंग इफ नम इज ग्रेटर देन 0, पहला नंबर क्या आउट क्या आएगा नम में 1, ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी है, 1 तो ग्रेटर है ना 0 से, देन जो भी इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी दैट विल एग्जीक्यूट, ठीक है। तो क्या कह रहा है प्रिंट नम इंटू 10, तो जो भी 1 है इंटू 10 यानी कि 10 इंटू 1 10 डिस्प्ले होगा। प्रोग्राम क्या है मल्टीपल्स ऑफ 10 डिस्प्ले करने हैं, 10 20 30 40 50 लाइक दैट, तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर दैट, राइट। हमारा ये इफ एल्स क्या कहता है, अगर कंडीशन इज ट्रू देन इमीडिएटली इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है दैट विल बी प्रिंटेड, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन अगर फॉल्स है देन एल्स के बाद वाली कंडीशन प्रिंट होगी, ये ध्यान रखना है। एल्स से पहले अगर कंडीशन ट्रू है तो वो वाली स्टेटमेंट, एल्स के बाद इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो देन दैट स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड, गॉट इट। नाउ लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे मींस नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या होता है बेटा, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर आई हैव ट्राइड टू शो यू a variable I have taken, value given is 100, and now I am checking if variable is less than 200, अगर 200 से छोटा है, yes भाई छोटा है ना, तो हमने प्रिंट किया एक्सप्रेशन वैल्यू इज लेस देन 200, लेकिन हम साथ में इफ लगा रहे हैं, इफ वेरिएबल इज इक्वल टू 150, अगर 150 है तो लिख दो भाई यस इट इज 150, एल्स एलिफ फिर कंडीशन लगा रहे हैं दैट इफ वेरिएबल इज इक्वल टू 100 तो शो करो इट इज 100, तो इन द सेम वे अलग अलग कंडीशंस लगा रखी हैं, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। लेट मी शो यू, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यूजर से हम एक ग्रेड डलवाई है हमने, इसको डिलीट कर रही हूं मैं, इसी में चेंज करते हैं, एंटर मार्क्स, मैं मार्क्स डलवा लिया यूजर से, ठीक है, और इस वेरिएबल का नाम भी मैंने मार्क्स कर दिया, ओके। नाउ इफ ही लगा रहे हैं तो ये सारा हटा दिया मैंने, नाउ आई एम चेकिंग, अब मेरा प्रोग्राम ध्यान से देखेंगे, इफ 90 अबव है तो ए ग्रेड देंगे, 80 अबव है तो बी ग्रेड देंगे, 70 अबव है तो सी ग्रेड देंगे, इतना छोटा सा ही करेंगे अभी हम, इफ लगाया एंड नाउ आई एम चेकिंग मार्क्स ग्रेटर देन 90 से बड़े हैं, बड़े की लिमिट कुछ भी हो सकती है, वो 2000 3000 भी हो सकता है, दैट इज प्रोग्रामर्स माइंड कि बड़े में भी आपने कितने लिमिट लगानी, अगर आपने 100 तक ही जाना है तो यू कैन पुट हेयर एंड लगा के दो कंडीशन दैट मार्क्स ग्रेटर देन 100 और लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 90 तो हमने कर दिया, एंड अलोंग विद दैट हम क्या बता सकते हैं दैट मार्क्स शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 100, लेकिन अभी हम सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, ये आया ग्रेटर देन 90 कर दिया मैंने। नाउ प्रिंट, क्या प्रिंट कर रहे हैं, योर ग्रेड इज ए, एक हो गया पूरा। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, एलिफ, ठीक है जी, एलिफ, अब हम दोबारा means when more than 2-3 statements are there then this is used, if के अंदर if, elif का मतलब else if, अगर ये नहीं तो क्या होगा, ठीक है, if you have condition then elif, अगर कंडीशन नहीं है ओनली स्टेटमेंट यू वांट टू गिव देन else। देखो अगर मैंने लिखा यहाँ पर 80, राइट, अब 80 से अगर बड़ा है तो क्या शो करें, प्रिंट ग्रेड इज बी, हो गया। नाउ एलिफ, दोबारा एलिफ लगाया, अब मैं स्टेटमेंट दे रही हूं मार्क्स अगर ग्रेटर देन 70 है, ओके,
इन द सेम वे यू कैन डू, कंटिन्यू। प्रिंट बस ही लास्ट करूंगी मैं, ग्रेड एस सी, सब हो गया। अब अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं हो, देन व्हाट यू विल डू, देन हमें क्या करना है, एल्स मीन्स अब हमारी कंडीशंस खत्म हो गई हैं, राइट। नाउ एनी मैसेज, सपोज मैंने लिख दिया सॉरी नॉट इन क्राइटेरिया, Got it? Means else बताना पड़ेगा, you have to tell if none of the condition is satisfied, तो क्या करेगा बेचारा प्रोग्राम, तो you have to tell। ठीक है, जब कुछ भी नहीं होगा तो else print होगा, else वाली स्टेटमेंट। Got it? Let's save it। जो भी एरर होगा हमें बता देगा ये। रन मॉड्यूल, एंटर मार्क्स, मार्क्स डलवा रहे हैं भाई हमसे, मैं डालती हूँ 95, योर ग्रेड इज ए, ठीक है ना। चलिए दोबारा देखते हैं, अब मैं 80 से ग्रेटर डालती हूँ 84, योर ग्रेड इज बी, राइट। दोबारा रन करते हैं, हाँ जी, आप क्या डालें, 70 से ग्रेटर डालते हैं 74, राइट, ओके। अगेन दोबारा रन करके देख रहे हैं, अब मैंने डाला 34, सी सॉरी नॉट इन क्राइटेरिया, क्योंकि हमने कंडीशन ही नहीं दी है ऐसी कोई, हमने 70 अबव तक गए हैं, हम 60 अबव भी नहीं गए हैं, राइट। तो दिस इज हाउ you can create any of the program with any of the conditions, right? That's it for now. Thank you.